Hello everyone, welcome back. Today we will study about storage of grains. We know very well that the grains which are harvested after maturation are stored so that we can use it whole year. So proper storage of agricultural product is necessary to get the regular supply of food products throughout the year because proper storage protect the grains and other food materials from pests, rodents and other microorganisms. In India, the loss of agriculture yield of grain is over 10% of the total production, and that is due to improper storage. The food grains and the other products are stored by dry storage और कोल्ड स्टोरेज. बहुत ज़रूरी है अन्न उत्पादन के बाद उसकी सही तरीके से स्टोरेज करना, अन्यथा जो अनाज की प्रोडक्शन पूरे साल में किसान बहुत मेहनत से करते हैं वो अनाज नष्ट हो जाएगा चूहों के द्वारा, कीट के द्वारा या फिर कई बार सही तरीके से इसका स्टोरेज ना करने के कारण मॉइस्चर नमी के कारण भी अनाज खराब हो जाता है, जिसका असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है. Now, how the storage of grain get degraded or loss of grain take place? There are two main factors responsible for the losses during storage are abiotic and biotic factor. That means कुछ जीवित जीव के द्वारा अनाज खराब हो सकते हैं या फिर कुछ अजैविक कारणों से भी अनाज की स्टोरेज सही प्रकार से नहीं हो पाती और अनाज नष्ट होने के आसार रहते हैं. Two main factors are responsible for the loss of the grain during storage are abiotic and biotic. Abiotic means non-living factors and biotic means living factor. Let us study that. Biotic factors. The living organisms which influence the storage of grains are called biotic factors. ऐसे जीव जो अनाज को खराब करते हैं, अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं स्टोरेज करने के दौरान, उनको हम बायोटिक फैक्टर्स बोल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल बीटल, rodents, mouse, squirrel, birds, pigeon, mites, fungi, bacteria, etc. Food also gets spoiled by enzymatic action present within them. Now, what are the abiotic factors? Abiotic factors means non-living environmental factors which spoil the grains. That could be temperature and moisture. Temperature and moisture come under the abiotic factor that affect storage of grains. The growth of insect and microorganism depend on the temperature. At higher temperature, insect growth rate is maximum, while microorganisms grow at the low range. This is the reason why food grains are stored at lower temperature. The greater amount of moisture in the food grains may cause decay, destruction, damage to the crops. So increased amount of moisture in grains also increases their size, due to which more space is needed for storage. So we have to keep these points also in consideration, that maintained temperature and moisture should be reduced. एबायोटिक फैक्टर में तापमान और नमी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसके कारण से अनाज को जो स्टोर करके रखा गया है वो अनाज खराब हो सकते हैं. बहुत अधिक तापमान पे भी कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीटाणु की ग्रोथ अधिक होती है.
इसीलिए अनाज को कोल्ड स्टोर में भी रखा जाता है। और अत्यधिक नमी होने के कारण भी अनाज खराब हो जाते हैं। नमी होने के कारण वो भीग जाते हैं और उसके कारण वो सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पानी से बचाव कर रखा जाए। ऐसे कंटेनर में उनको रखा जाए जो एयर टाइट हो, अर्थात उसमें हवा ना जा सके, पानी ना जा सके। इन दो तरीकों को ध्यान में रखते हुए हम अनाज को बचा सकते हैं। इसलिए अनाज को स्टोर करने के पहले भी उसको धूप में अच्छे से सुखाया जाता है ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर जो है वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाए। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अब ये जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हैं, इसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं ताकि हमारा अनाज सुरक्षित रहे। फर्स्ट स्टेप इज ड्राइंग। The grains contain moisture during the time of harvesting. So drying of the grain reduces the moisture content and thus it proves to be an important preventive measure. अनाज की जब कटाई होती है उस दौरान उसमें कुछ ना कुछ नमी पाई जाती है, तो बहुत ज़रूरी है कि अनाज की कटाई करने के बाद उसको सुखाया जाए सही प्रकार से ताकि उसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाए और इस प्रकार से हम अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं। Second method is cleaning and maintaining hygiene. The gunny bags, container, go down, stores should be cleaned and disinfected in a proper way. जो अनाज को हम बोरे में भरकर या फिर बड़े बड़े कंटेनर्स में, ड्रम में, गोडाउन्स में स्टोर करके रखते हैं, ज़रूरी है कि वहाँ पे साफ़ सफाई भी मेंटेन की जाए। उसमें फ्यूमिगेशन, कुछ फ्यूम्स, केमिकल स्प्रे इत्यादि किया जाए। So third step is fumigation. Fumigation is the practice of destroying insect by toxic fume. कीड़े मकोड़ों को, कीट को स्ट्रॉन्ग स्मेल से, केमिकल स्मेल से मारा जा सकता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं फ्यूमिगेशन। नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। कुछ केमिकल का प्रयोग करके भी हम अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं ताकि उसको कीड़े ना लगें। So that method in which we spray chemicals or we use some chemical material to prevent the stored grains from insect pest rodents are called chemical control method. How the various biotic and abiotic factors causes damages to the crops. किस प्रकार से ये बायोटिक एबायोटिक फैक्टर अनाज को डिग्रेड करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंसेक्ट एंड पैथोजेंस, degradation in quality of food grains. Investigation of insect and pathogen means अनाज में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अंदर चले जाते हैं। जब वो नमी पाएंगे, अनाज गीला हो जाएगा तो आसानी से वो उसमें घर कर सकते हैं। उसको कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंसेक्ट एंड पैथोजन। डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी, अर्थात अनाज की जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर देना, अनाज का रंग में परिवर्तन आ जाना या टेस्ट में परिवर्तन आ जाना, ये होता है डिग्रेडेशन। पुअर एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन। अब इस खराब अनाज को अगर हम बोते हैं तो उससे जर्मिनेशन नहीं होगी, उससे जर्मिनेशन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। डिसकलराइजेशन ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस। अगर इन केस कुछ पौधे उग भी गए तो उसमें से जो अनाज उत्पत्ति होगी उसके अनाज का कलर, रंग अच्छा नहीं होगा। पुअर मार्केटेबिलिटी एंड इकोनॉमी लॉस। और इस तरीके के ख़राब अनाज को अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो इसका मार्केट में वैल्यू नहीं रहेगा, लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, जिससे हमें आर्थिक तंगी आएगी। लॉस इन वेट ऑफ द स्टोर्ड प्रोड्यूस। और अगर कीटाणु इसको नष्ट कर देंगे तो अंदर से अनाज खाली हो जाएगा, जिसके कारण से इसका भार बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और हमें इसकी सही दाम नहीं मिलेंगे। थैंक यू।